Well, good evening to all of you. Good evening. Are you excited to be here? Yes. क्या आप खुश हैं यहाँ पे रह के? क्या आप खुश हैं यहाँ पे आके? Yes. Are you? Yes. Yes. Okay. So, as we were in the series of Adventures in Spirit, जो हम श्रृंखला कर रहे हैं आत्मा में रोमांच की, Shane asked me couple of months back, Sam, I want you to preach. शेन ने कुछ महीनों पहले ही कहा था कि मैं चाहता हूँ कि तुम भी प्रचार करो यहाँ पे। And I was like, Shane, I cannot do that. और मैंने कहा कि मैं ये नहीं कर सकता। I cannot stand in front of the people and say anything. मैं इतने सारे लोगों के सामने खड़े होकर कुछ कह नहीं सकता हूँ। I told him I have stage fright. क्या चीज़? हाँ, उसने कहा कि मुझे स्टेज पे आके डर लगता है यहाँ पे आने पे। But Shane was like, Sam, it's okay. You leave it up to the Spirit, and God will help you. It's और शेन absolutely fine. और शेन ने कहा कि नहीं, तुम आगे बढ़ो, तुमको परमेश्वर तुमको हेल्प करेगा और सब अच्छा होगा। And the way he said it, it made it so it was just so easy and calm. और जैसा कि उसने मुझे प्रोत्साहित किया, तो मुझे बहुत अच्छा और सरल लगा ये सब। And it reminded me of the verse when Jesus said that I will send you a helper. और जहाँ यीशु कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुमको एक सहायक भेजूंगा। Similarly, through Shane helped me. In the same way, we have the Spirit to help us. जिस तरह शेन ने मुझे मदद की, उस तरह से हमारे पास पवित्र आत्मा है जो हमारी सहायक बनकर है। Amen. So our verse for today is from Acts chapter 8, verse 14 to 17. तो आज का वचन है प्रेरितों के काम 8 से 8 में I will just quickly read it out. 14 से 17। So in verse 14 it says, when the apostles in Jerusalem heard that Samaria had accepted the word of God. Okay, I'll just read the whole thing. Yeah. They sent Peter and John to Samaria. When they arrived, they prayed for the new believers that they might receive the Holy Spirit. प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे, सुना कि समारियों ने परमेश्वर को लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा और जाकर उनके लिए प्रार्थना की ताकि पवित्र आत्मा पाए। And because the Holy Spirit had not yet come on any of them, they had simply been baptized in the name of the Lord Jesus. क्योंकि पवित्र आत्मा अब तक उनके बीच में नहीं आई थी और उन्होंने सिर्फ सादा बपतिस्मा लिया हुआ था। Then Peter and John placed their hands on them and they received the Holy Spirit. और पतरस और यूहन्ना ने उनके ऊपर हाथ रखा और उन सब ने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया। There's something here that Philip had gone to Samaria. He prayed for everyone. यहाँ पे कुछ ऐसा है कि फिलिप समारिया के गांव में पहुंचा और सबके लिए प्रार्थना की। He healed the sick. He casted out demons. उसने जो बीमारों को चंगा किया और शैतानों को दुष्ट आत्मा से लोगों को छुटकारा They दिलाया। had also accepted Christ. और उन सब ने प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण किया। But something had not happened yet. पर कुछ ऐसी चीज थी जो अभी तक उनके जीवन में हुई नहीं थी। They had not received the Holy Spirit. उन्होंने पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं किया था। Now, I'd like to share a small story with you. Are you excited to hear the story? एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ। So, if you're a history fanatic, if you like history, अगर आपको इतिहास के बारे में आप इच्छुक हैं, during World War II, विश्व युद्ध दूसरे के समय, when Germany was finally defeated by the Allied powers, Germany, Nazi Germany, जब जर्मनी defeated किससे? by the other countries. अच्छा, जब हाँ, दूसरे विश्व युद्ध के समय जर्मनी जब बाकी देशों से हार रहा था, When Germany was defeated, it was occupied by the other forces. जब जर्मनी हार रहा था तो बाकी जो सेनाएं थी वो उन पर कब्जा कर रही थी। Now this country was divided into different parts. अभी जो ये देश है कई भागों में बटा हुआ था। The eastern side was occupied by Soviet Union. जो ईस्टर्न साइड था वो सोवियत यूनियन की तरफ में था। And the western side, of course, by the west, by America. और दक्षिण साइड जो था वो अमेरिका के कब्जे में था। So during the occupation, both the parties were governing this area. तो ये जो समय था वो दो पार्टीज थी, अलग-अलग थी। Now many people from the east, which was occupied by the Soviet Union, जो ईस्ट की तरफ से लोग थे, they were all trying to come towards the west. जो ईस्ट की तरफ के लोग थे वो सारे दक्षिण की तरफ आने की कोशिश कर रहे थे। Because they saw freedom and democracy in the west. क्योंकि उस साइड पे आजादी थी, बहुत हर तरह से एक अच्छा सघन देश था। So a lot of people, a lot of families were migrating towards the west. तो बहुत सारे परिवार के लोग दक्षिण की तरफ बढ़ रहे थे। And to stop this, the Soviet Union decided to build a wall. तो इसको रोकने के लिए, उन लोगों को वहां पे आने से रोकने के लिए सोवियत यूनियन ने बीच में एक दीवार बनाई। So in the year 1961, 1961 में a wall was built
And this wall is the most infamous wall, the Berlin Wall. 1961 में एक दीवार का निर्माण हुआ जिसको बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत नामकरण दीवार है जिसका नाम बर्लिन वॉल। Now, Berlin was the capital city of Germany. ये जर्मनी की कैपिटल है। Now, when this wall was built, there was a direct order given: anyone who's trying to cross the wall, जब ये दीवार बनी तो उस समय ये निर्देश दिया गया कोई भी लोग इस दीवार के उस साइड पहुंचेंगे should be shot at sight. उनको उसी समय गोली से मार दिया So जाएगा। there were barbed wires, jali. तो वहाँ पे जो कांटे वाली जो तार होते हैं ना, कांटे वाले तार, वो लगा दिए गए। And soldiers on the eastern side were just directed to shoot at sight to anyone who's trying to cross to the other. और सेनाओं को ये निर्देश दिया गया कोई भी इधर इस पार से उस तरफ जाएगा उसको गोली मार दी जाएगी। Now, more than 5,000 people तो करीब successfully attempted and they crossed. 5,000 लोग कैसे भी करके उन दीवार को पार कर चुके थे। And over 140 died during this process. और इन सब चीजों में करीब 140 लोगों को की मृत्यु हो गई, उनको मार गिराया गया। Now, cutting the story stopped. After a lot of protest and international pressure, the wall was finally broken down in November 1989. पर काफी समय के बाद अंतर्राष्ट्रीय तौर पे इनको काफी ज्यादा उनको जोर दिया गया और इस दीवार को तोड़ना पड़ा। George, 3 decades, 30 years of division. There were families on both the sides who could not meet each other. They were divided with this wall. जब तक ये दीवार थी करीब 30 साल तक यहाँ के लोग और इस तरफ के लोगों के बीच में कोई आपस में मेल जोल नहीं था, कोई आपस में मिल नहीं पा रहे थे। But finally the wall was broken. पर आखिर में इस दीवार तोड़ दी गई। Now, if you see somewhere down that in Acts 8, we see the same wall. प्रेरितों के काम 8 में हम यही से इस तरह की दीवार के बारे में हम पढ़ते हैं। Now, if you see the history between the Samaritans and the Jews, जब हम इतिहास में देखते हैं समारितन और यूनानी लोगों का, they had great hatred for each other. उनके आपस में बहुत ज्यादा नफरत The थी। Jews used to hate the Samaritans. जो यूनानी थे वो समारितन को बहुत ज्यादा नफरत The करते Jews थे। would not, involve or mingle with the Samaritans. They were kept away. तो जो यूनानी लोग थे वो लोग समारितन के किसी भी कार्यक्रम में कभी जाते नहीं थे। Now, there's a history behind this. This has been going on more than 700 years. और उससे 700 पहले की इसकी इतिहास है। Now, I'll just read a short word and I'll explain to you why this hatred began. एक छोटा सा शब्द बताऊंगा फिर कहूंगा कि इन दोनों के बीच में दुश्मनी क्यों थी। So, after Israel was divided into the northern kingdom and the southern kingdom, we see this in 1 Kings chapter 12. एक राजा के पहले अध्याय में हमने देखा है First King 12. हाँ, First King chapter 12. एक राजा का 12वां अध्याय में what is that? The Assyrians in the year 1722 BC. तो सीरिया के लोग थे 1922 में 722 ईसा पूर्व में, ठीक है। They had conquered the northern area of Israel. उन्होंने नॉर्थ साइड का जो इजराइल था उसको कब्जा कर लिया था। Now, after they had captured this area, many Israelites had left the land and it was replaced by foreign people. और जब उन्होंने कब्जा किया तो काफी यूनानी लोग जो वहाँ रह रहे थे उनको वो जगह वहाँ से खाली करनी पड़ी और बाकी दूसरे देश के लोग यहाँ पे आने लगे। So because of this, many people started getting involved with the practices of the Assyrians. और इस दौरान कई लोग थे जो सीरियंस के जो कार्यक्रम होते थे उसमें वो ज्यादा उन लोग में मिलने लगे। Now the Jews from the southern kingdom, अब जो यूनानी लोग थे तो साउदर्न साइड पे दक्षिण तरफ रहते थे, they viewed the Samaritans as unclean people. तो उनको लगता था कि उनको एक मन में था कि ये समारिया के लोग हैं, ये लोग अशुद्ध हैं। The Jews would follow the law of Moses and the Samaritans were not following the law of Moses. क्योंकि मूसा का जो लॉ था वो यूनानी लोग मानते थे और समारितन लोग मूसा के लॉ को नहीं मानते थे। So the Samaritans rejected worship in Jerusalem and they would worship at Mount Gerizim. तो समारितन जो लोग थे वो कौन सा? Worship. Which place? Mount Gerizim. माउंट गेरिज़िम, वहाँ पे वो लोग प्रार्थना करने जाते But थे। you see the Jews used to worship in Jerusalem. पर यरूशलेम में जो यूनानी लोग थे वो यरूशलेम में वहाँ प्रार्थना के लिए जाते थे। But when Jesus came, परंतु जब यीशु आए he broke those barriers. उन्होंने वो जो बीच की जो दीवार थी उसको तोड़ दिया। You can see he traveled through Samaria and spoke with the Samaritan woman. हम यहाँ पढ़ते हैं कि वो समारिया जाते हैं और समारिया की जो औरत थी उससे बात करते हैं। He revealed himself to her. वो उसको अपने बारे में जानकारी देते हैं। And when we see in Acts 8, the Holy Spirit continued that work by bringing Jews and the Samaritans together. तो जब हम प्रेरितों के काम 8 में देखते हैं कि
यूनानी लोग और समारित लोग साथ में अब मिल रहे हैं। Then we move into Acts 8 again. तब हम वापस प्रेरितों के काम अध्याय 8 की तरफ बढ़ते हैं। During that time, there was a great persecution in the country. उस समय उस देश में बहुत ज्यादा सताव हो रहा था। To understand what exactly happened, I'm going to just get into this. तो उसको और ज्यादा जानकारी और अच्छी गहराई से समझने के लिए There was a young Christian called Stephen. एक जवान मसीही था, स्टीफन उसका नाम था। This boy was martyred at a very early age उसको बहुत कम उम्र में मार दिया गया, उसको शहादत मिली because of his faith. क्योंकि उसके विश्वास के Because he कारण, did not bow to any other gods. क्योंकि वो किसी और भगवान पर विश्वास नहीं करता था, But he lived for his faith and he died for his faith. परंतु अपने विश्वास के कारण जिया था और विश्वास के कारण वो मारा गया। Now, post this, there was a great persecution in the area. Many Christian believers had to scatter. They had to run away. क्योंकि इस जगह पे इतना ज्यादा सताव था, बहुत सारे मसीही लोग थे, उनको वहां से भागना पड़ा। And even during this time, Paul, who was Saul back then, he used to go from house to house and drag Christians out of their houses and throw them into the jail. और पौलुस से वो बहुत सारे मसीहियों को वहां से बचाने की कोशिश कर रहे थे। No. He used to throw them into jail. Jail. अच्छा, हाँ, पौलुस थे वो जो मसीही लोग थे वो उनको जेल में डाल रहे थे। हाँ, Now, even during this time when the believers were scattered, they carried the word of God with them. बस इस समय में जो मसीही लोग थे परमेश्वर के वचन के साथ चल रहे थे, भले इधर तितर बितर हो गए थे, परंतु मसीह के वचन को लेकर चल रहे थे। Now, the word of God, the good news, spread to other parts of the country. तो जो भी सुसमाचार थे बाकी देशों में भी धीरे धीरे उन लोग प्रचार करने लगे। And during one of this time, Philip had been to Samaria. और इस समय फिलिप जो था वो समारिया के गांव में पहुंचता है। When he reached there, he spread the word. वो जब वहाँ पहुंचता है वो वहाँ पे प्रचार करता है, People accepted Christ. लोग यीशु को ग्रहण करते हैं He prayed for them. और वो उनके लिए प्रार्थना करता है। Demons were cast out. जो भी दुष्ट आत्माएं थी वो वहाँ से वो भाग जाती हैं The sick were healed. और जो बीमार थे उनको चंगाई मिलती है। And then this message had reached John and Peter back in Jerusalem that the Samaritans have accepted the gospel. कि यहाँ पे समारितन के लोग हैं, वो लोग वो मसीह को समझ रहे हैं और इस विश्वास को ग्रहण कर रहे हैं। ये बात पौलुस और यूहन्ना को पता चलती है। Now, although the Samaritans had accepted Christ, had accepted the gospel, but they had not received the Holy Spirit yet. पर जितने भी समारिया के लोग थे वो सारे लोग इस विश्वास को मसीह के पर विश्वास करते हैं, परंतु किसी ने अभी तक पवित्र आत्मा को समझा नहीं था। We see down in history that whenever in the Bible when someone accepted the gospel, they would receive the Holy Spirit. हमने हमेशा इस इतिहास में ये पढ़ा है कि जिन्होंने भी यीशु को माना है वो पवित्र आत्मा को जरूर जानता है। But when you see here, the Samaritans had accepted the gospel, but they had not received the Spirit. परंतु हम यहाँ देखते हैं कि समारिया के लोगों ने सुसमाचार को ग्रहण किया है, परंतु वो पवित्र आत्मा को अभी तक नहीं जान रहे थे। Now one question arises, church. अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है, Why did God delay the Holy Spirit? delay the Holy Spirit? हाँ, अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को इनके पास पहुँचाने में देरी क्यों की? This is not because their faith was incomplete ये इसका कारण ये नहीं था कि उनका विश्वास कमजोर था, or salvation required something more. पर उनको उद्धार के लिए कुछ और चीजों की जरूरत थी। The delay in receiving the Holy Spirit is one of the unique moments. पवित्र आत्मा का वहां पहुंचने में देरी होना इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। Now, when Peter and John went to Samaria, they laid their hands upon them, and when they prayed for them, they received the Spirit. जब पतरस और यूहन्ना समारिया गए, उन्होंने लोगों के ऊपर हाथ रखा, उनसे प्रार्थना की और उन्होंने रिसीव द स्पिरिट, हाँ, और उन्होंने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया। Now, if you see, church, the Jews and the Samaritan had centuries of hatred for one another. हम इस बात को देखते हैं कि समारिया के लोग और यूनानी लोग इन लोगों के आपस में काफी ज्यादा नफरतें थी। And God did not want to have two separate churches. और परमेश्वर कभी नहीं चाहते थे कि दो अलग-अलग चर्च बने। God did not want to have any division among His church. परमेश्वर कभी नहीं चाहते थे कि दो तबके के लोगों के बीच में किसी भी तरह की दीवार आए। If you see, if the Samaritan had received the Holy Spirit independently, समारिया के लोगों ने पवित्र आत्मा को अपने तौर तरीके से उसको ग्रहण किया था। there have been two churches that could have emerged: दो कलीसियां यहाँ पे मिल सकती थी, the Jewish church and the Samaritan church. जूविश चर्च और समारितन के चर्च, दो अलग-अलग चर्च यहाँ मिल सकते थे। But God delayed the Spirit. परंतु पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने देरी से भेजा। He waited for Peter and John, representative of the apostles. वो चाहते थे कि पतरस और यूहन्ना वो जब यहाँ पे आके इस बात को आगे बढ़ाएं। He wanted them to go
prays for them, and then they would receive the Holy Spirit. परमेश्वर चाहते थे कि पतरस और यूहन्ना इस जगह पे जाए, लोगों के लिए प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा में लोगों के बारे को जानकारी दें। So you see, church, the devil's big plan, the devil's main weapon is to divide people. हम यहाँ देखते हैं कि जो शैतान का काम होता है वो हमेशा चाहता है कि लोगों के बीच में दरार आए। He tries to divide people by religion, by caste, वो धर्म और जाति के तौर पे लोगों को बांटता है, by status, उनका जो ओहदा है उस पर बांटता है, by skin color. उनकी जो स्किन का कलर है, शरीर का कलर, उस पर वो लोगों को बांटता है। And division creates hatred. और जब भी लोगों के बीच में मतलब गैप आता है तो कहीं ना कहीं नफरतें भी बढ़ जाती हैं। Division creates inequality. और जब भी दो लोगों के बीच में गैप आता है तो कहीं ना कहीं नफरतें और दुश्मनी बढ़ जाती है। Division creates enemies. और इन दोनों के बीच में दुश्मनी भी लोगों के बीच में आ जाती है। And God did not want His church to have any of those. और परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि उनकी कलीसिया के बीच में ये सारी चीजें आए। If you see, church, love can only thrive when there's unity. हम ये देखते हैं कि सिर्फ प्यार से और लोगों के बीच में आपसी भेद दूर हो जाते हैं। When there's love for one another, there is unity. जहाँ हम एक दूसरे के प्रति प्यार होता है वहाँ एकता होती है। But if there is division, जहाँ पे भी भेद होता है, love cannot thrive. जहाँ पे भी भेद होता है वहाँ पे कभी प्यार नहीं रह सकता। Because we humans start comparing ourselves to one another. क्योंकि हम एक इंसान के रूप में एक दूसरे को परखते हैं। Say, I am big, you are small. ये हमेशा ये लोगों के ध्यान में रहता है कि हम ज्यादा बेहतर हैं, तुम कम बेहतर हो। And in God's eye, we are all equal. परंतु परमेश्वर की नजरों में हम सब एक समान हैं। So if you go back to this chapter, why did God delay the Spirit? अगर हम इस अध्याय में जाके देखते हैं कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को भेजने में देरी क्यों की? He did not want to have two separate churches. वो नहीं चाहते थे कि दो अलग अलग कलीसिया बने। There was one gospel, he wanted to have one church. क्योंकि सिर्फ एक सुसमाचार है और इसलिए एक ही कलीसिया होनी चाहिए। Do you agree with me, church? क्या इस बात को Are you here? आप- Can you hear me? Yes. The gospel breaks every barrier. जो सुसमाचार है वो हर तरह के बंधनों को तोड़ता है। Every place the gospel has reached, जहाँ जहाँ सुसमाचार पहुँचा है it has united people. वहाँ पे लोगों के बीच में जुड़ाव आया है। It has united communities. वहाँ के लोग जो थे वो सब आपस में जुड़ जाते And हैं। when we see, for 700 years of hatred, there was unity. और हम देखते हैं कि 700 साल जो नफरतों के दौर थे, अब जाके लोगों के बीच में मेल मिलाप हो जाता है। Now the Jews and the Samaritans were one people. अब और जूबिश और समारिता के लोग अब एक हो गए हैं। Church of God. सब परमेश्वर के पुत्र बच्चे बन गए हैं। The devil tries his best to divide people, शैतान अपनी हर पूरी कोशिश करता है लोगों के बीच में भेद करे, but the gospel breaks that barrier. परंतु परमेश्वर का सुसमाचार उस बंधनों को तोड़ता है। The Holy Spirit breaks that wall. पवित्र आत्मा उन दीवारों को तोड़ती है। Amen. If you see, Paul writes in Ephesians chapter 2 verse 14, इफिसियों 2:14 जहाँ पे पॉल कहते हैं, For he himself is our peace, वो खुद हमारी शांति है। who has made the two groups one, वो खुद हमारी शांति है जिसने दो भागों को एक कर दिया। and destroyed the barrier, वो सारे जो बंधन थे उसको तोड़ा the dividing wall of hostility. और जो भी दो दीवार बीच की थी उसको उस परमेश्वर ने तोड़ा है। And even today, church, the gospel still tear down what the new walls. और आज भी कलीसिया सुसमाचार हर तरह की दीवारों को It तोड़ता breaks है। the barrier of race, वो सारी रुकावटें, culture, जो भी सिद्धांत, जो भी रीति रिवाज हैं, language, उनकी जो भाषाएं हैं, social class, जो भी लोगों का स्टेटस होता है, nationality, उनका जो राष्ट्रीय वो है, and चिन्ह most है। importantly, personal history. और साथ में हम सबकी अपनी खुद की जो कहानी है। The church should never be divided. The church should never be divided कलीसिया कभी भी भागों में नहीं बंटना चाहिए। by the very thing Christ died to remove. और उसी कारण परमेश्वर ने अपने आप को परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान किया ताकि ये कलीसिया में कभी कोई विभाजन ना आए। Do you agree with me, church? Yes. Amen. Now, it is not enough to accept the gospel and know Jesus. ये खाली सुसमाचार को समझना और यीशु ग्रहण करना ही नहीं है। Christianity just does not end there by knowing Jesus. मसीही जीवन से यही खत्म नहीं होता कि हम यीशु को जानते हैं। But the Christian life cannot be lived by human strength alone. पर मसीही जीवन सिर्फ इंसानों की ताकत के द्वारा नहीं खड़ा रह सकता। It requires the presence and the power of the Holy Spirit. उसको हमेशा पवित्र आत्मा की उपस्थिति और उसकी ताकत सामर्थ की जरूरत है। The Samaritans had accepted the gospel.
समारिया के लोगों ने सुसमाचार को ग्रहण किया, but they had not received the Spirit yet. परंतु उन्होंने पवित्र आत्मा को एक्सेप्ट नहीं किया था। But when they received the Spirit, पर जब उन्होंने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया, their lives were transformed. उनके जीवन में बदलाव आया। This works even today, church. और वही चीज आज भी कार्य करती है। You may know Jesus. आप यीशु को जानते You may होंगे, have accepted the gospel, आपने जो सुसमाचार को समझा होगा, but you still need the Holy Spirit पर आप फिर भी पवित्र आत्मा को आपकी जरूरत है। to move you, to direct you, to guide you, आपको सही दिशा दिलाने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए पवित्र आत्मा की आपको जरूरत है। to live a transformed life. एक नई बदली हुई जीवन के लिए The Holy Spirit renews what was old पवित्र आत्मा जो भी पुरानी चीज है उसको नया कर देती है, through Christ Jesus. परमेश्वर के Do सामर्थ्य you से। believe in this, church? Yes. The fall of the Berlin Wall वो जो स्वर्ण दीवार थी जो गिरी थी, reminds us वो हमको इस बात की याद दिलाती है, what was built for division was broken down by the Spirit. वो जो हमको याद दिलाती है कि पवित्र आत्मा की ताकत से वो दीवार गिरी थी। So tonight, if there's anything that divides you, by the power of the Holy Spirit, I pray it breaks. तो आज रात जो भी चीजें आपको कहीं दूर रखती है, पवित्र आत्मा की ताकत से वो सारी दीवारें आपके जीवन की टूट जाए। There will be more unity. आपके जीवन में वो और There ज्यादा will be more एकता है, love. आपके जीवन में और ज्यादा प्यार है, There will be more understanding of the Holy Spirit. आपके जीवन में और ज्यादा समझ हो पवित्र आत्मा को समझने की। Through this gospel, church, your life will never remain the same. ये जो सुसमाचार है, इसके द्वारा आपके जीवन में एक नया बदलाव आएगा। But it will be transformed, it will be renewed. वो एक नए बदलाव के साथ, नयापन के साथ आपका जीवन बढ़ेगा। Jesus came down to break every barrier. यीशु आए थे हर तरह के जो जुड़ाव को हटाने के And लिए, today, through His Spirit, all barriers are broken. और आज उनकी आत्मा के द्वारा जितने भी विभाजन थे वो सबको तोड़ दिया जाता है। I just want to leave this with you tonight. मैं इस बात के साथ अपनी बात को यहाँ खत्म करता हूँ। I hope what God had for you has reached you. मैं इस बात को उम्मीद करता हूँ कि जो परमेश्वर ने आपको रखा है वो आपको मिल जाए। I wanted to keep it short. I didn't want to make it a big sermon. मैं उस बात को बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा नहीं, बहुत कम शब्दों में कहना चाहूंगा। So thank you for your time. आपके इस समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। So I leave this message with you. And tonight, when you leave from this room, remember that every barrier is broken. आप जब इस कमरे से आज शाम को जाएंगे, इस बात को समझ, जितनी भी दीवारें आपके जीवन की है वो सारी टूट चुकी हैं, गिर Every चुकी wall हैं। is come down. हर एक दीवार आपके जीवन की नीचे गिर चुकी And है। now there is freedom and a direct way to Christ. अब आप सीधी तौर पे परमेश्वर को देख सकते हैं। Amen. Thank you so much.